बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, रियल एस्टेट के मतलब बहुत सारी वीडियोस आपको शेयर करते रहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे DHA अथॉरिटीज़ ने एक प्लांटेशन के लिए बड़ा ही खूबसूरत सा माहौल क्रिएट किया, लोकेशन क्रिएट की। इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके DHA अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्लांट्स की गिफ्टिंग की गई और इसके अलावा प्लांटेशन भी की गई है। ये ज़रा इनको घुमा के दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे इस वक्त लोग अपने अपने घरों के लिए यहाँ से फ्री प्लांट्स लेके जा रहे हैं और फ्यूचर में यही छोटे छोटे पौधे बड़े बड़े दरख्त बनेंगे और इंशाल्लाह इन्वायरमेंट को सिक्योर करेंगे। व्यूअर्स, अब इस इवेंट के सारे जो आप क्लिप्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको भी इंकरेजमेंट मिले और आप भी इस तरह की लोकेशन पे अपने घर के करीब, अपने गार्डन में, अपने दरवाजे के बाहर, अपनी गली में पौधे लगाएं और माहौल में अपना कंट्रीब्यूशन करें। पोल्यूशन तो हर कोई फैला रहा है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना अच्छे माहौल में वो बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या इवेंट्स हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस्समाइ माअन लकुम मिन्हु शराब वमिन्हु शजरुन फीहि तुसीमून युंबितु लकुम बिहि ज़र्अ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वल्अअनाब والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدقت या रब्बल आलमीन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमानों से पानी उतारा जिससे तुम पीते हो, जिससे दरख्त उगते हैं, जिसमें तुम जानवर चराते हो। उसी पानी से तुम्हारे लिए खेत, जैतून, खजूर, अंगूर, हर किस्म के फल उगाता है। बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Basically, when I see plantation from an environmentalist perspective, I consider it as the solution for each and every environmental problem that we are facing at the moment, whether it be the air pollution, whether it be the water pollution, soil pollution, threat to the biodiversity, or any kind of other environmental issue that mankind is facing at this time. Then when I try to link it with the religion, plantation is something that our religion has taught us 1400 years back. I would like to refer to hadith that when any one of you plants a tree and a bird eats its fruit, it's basically a sadaqah for the one who has planted it. So this is the moment when we are facing so many environmental challenges that have in the in these years and have made our life miserable. So plantation is the only solution at this moment. In this way, we can save our lives. We can save the lives of the birds, of the animals, of the biodiversity, of other species, and we can treat various environmental problems with it. They provide us the oxygen. They anchor our soils.
they basically suck most of the pollutants from the water and turn it into other forms which are less detrimental for our environment. So I think this drive should start from ourselves. We ourselves should take the responsibility, at least plant one tree, take its responsibility, and try to make your environment, your life cleaner and cleaner. Thank you. It's my pleasure to be here with the DHA Monsoon Plantation Drive 2025. Actually, when I see the participants here, it's so refreshing and optimistic, which gives us a reflection that this is a shared responsibility for all of us. बल्कि किसी एक segment की responsibility नहीं है ये. And the second pride for me is I am representing Atak Oil Group here, and this piece of land, this air and nature reserve, belongs to Atak Refinery. That is also one of my pride. And this collaboration between Atak Refinery, Atak Oil Group, and DHA, that is exemplary and commendable. So once again, thank you very much for inviting us in this beautiful event. I am not expert, but generally I love to be close to the nature. तो उसे कुछ चीज़ों का पता चलता है. ये इवेंट्स, ये एक्टिविटीज़ हम सीजनल जो है इनको कंडक्ट करते हैं, एंड वी ऑब्जर्व देम वेरी फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड. बट इन माय ओपिनियन, व्हाई दिस इज नॉट ब्रिंगिंग द इम्पैक्ट? बिकॉज पाकिस्तान इज स्टिल एक्सट्रीमली forest poor country. If I am not wrong, if I quote the numbers, I was just recalling because मुझे कल हबीब ने भी बुलाना था, तो I was recalling the number कि क्या हो सकते हैं. तो if I am not wrong, Pakistan is probably less than, Pakistan's forest covered area is less than 5% against the global standard of more than 30%. और दूसरा सरप्राइज, I was also recalling, मैंने कहा मेरे को बात करनी है तो क्या करूँ, तो I was able to remember, other day I was reading an article. By virtue of my past employment with the corporate world, I had the opportunity to be in almost all the countries of Middle East, especially UAE. UAE में काफ़ी frequently जाना हुआ, आप में से बड़े सारे लोग गए होंगे वहाँ पे. So I just want to compare कि as of today, if Pakistan is at 5%, UAE is also at 5%. Isn't it very surprising? UAE a couple of decades ago, it's a पूरा Middle East जो है, it's a desert, जहाँ पे plantation करने के लिए you make a lot of effort. ठीक है जी. और उनका 5% जो है, that is actually man-made 5%. और हमारा जो 5% है, that is given by the Almighty Allah. लेकिन unfortunately it is deteriorating with every passing day, every month, every year. So I don't know where it will stop. So मैं कहना ये चाह रहा था कि इन events का impact क्यों नहीं हो रहा? Because management principle कहता है कि events do not make the impact. अगर impact लेके आना है तो it has to be translated into some kind of continuity. किसी system में उसको हमें लेके आना है. So probably this event can serve the purpose for us to make a commitment कि इसको आगे लेके चलें. ये प्लांटेशन जो है, it may look like a very trivial, very small event. छोटी सी एक्टिविटी हमें नज़र आएगी कि एक सैपलिंग को हमने प्लांट कर दिया, लेकिन this is where the solution is. You talk about the problem of pollution, you talk about the problem of rising temperature. ये आजकल क्या हो रहा है? We have witnessed this unprecedented floods and all that. तो actually यही solution है इसका, जिसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, मैं थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में इन्वॉल्व रहा हूँ प्लांटेशन के अंदर, बिकॉज अटक रिफाइनरी, वन ऑफ द मेजर कंपनी ऑफ अटक ऑयल ग्रुप, वी प्लांट रिलीजियसली, वेरी रिलीजियसली 12,000 to 15,000 सैपलिंग्स एवरी ईयर. और सिर्फ प्लांटेशन नहीं होती, वी मेक श्योर वेयर एवर वी प्लांट, वी टेक केयर ऑफ इट टू द एक्सटेंट के एक दरख्त बने वो. तो इसी तरह ये भी ज़रूरी है, हम जो प्लांटेशन करें, दैट प्लांटेशन इज़ नीड टू बी लुक्ड आफ्टर लाइक ए चाइल्ड, लाइक ए किड ऑफ आवर्स, सो दैट कि वो ग्रो करे और सर्वाइव करे एट इज ओन, सस्टेनेबल करें. तो सस्टेनेबिलिटी इज द आंसर. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा, ऑल्दो आई एम इंक्रोचिंग लिटिल टाइम ऑफ योर्स, एज ए ह्यूमन और स्पेशली एज ए मुस्लिम्स, आई थिंक एक हमारा इंपॉर्टेंट जो KPI है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो हमारा है, वो ये होना चाहिए, द काइंड ऑफ नेचर रिसोर्सेज वी गॉट फ्रॉम आवर प्रीवियस जनरेशंस, वो किस शेप में हमने लिए, किस क्वालिटी में हमें वो रिसोर्सेज मिले, और देन वी नीड टू इवैल्यूएट कि जब हम उसको छोड़ के जाएंगे फॉर द अपकमिंग, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, तो हम उसको किस तरह छोड़ के जा रहे हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज़ टू बी हैंडेड ओवर टू द कमिंग जनरेशन इन अ मच बेटर फैशन, मच बेटर मैनर, मच बेटर क्वालिटी, बेहतर तरीके से लेके जाएँ. ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट हैपनिंग हियर इन पाकिस्तान. लेट्स मेक अ कमिटमेंट एज ऑफ टुडे इस इवेंट के हवाले से
कि इसको एक ऐसी पर्सनल इंस्पिरेशन लें इसमें से, और बिकॉज वी आर हेयर फॉर अदर्स, तो दूसरों के लिए कुछ बेहतर छोड़ के जाएँ. So that's what I had to say, and once again I'm thankful to the organizers, to the volunteers, to the participants, and especially the beautiful faces. Colonel Habib nazar aa rahe hain, Bagadi Amjad is here. They are very 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 good friend of mine. So thank you very much, sir, for inviting us, and let's hope this event is converted into a continuity, into a system. Thank you very much. माहौल के बारे में तो लोग बहुत सी बातें करेंगे, बस मैं दिल से दिल की 2-4 बातें आपसे करता हूँ. एक तो ये जगह है, ये बहुत हिस्टोरिकल जगह है. आप लोग जो आते हैं यहाँ पे, आपको पता होगा ये 100 साल पहले ये जगह एक्वायर की गई थी. और देखिए 100 साल पहले उनका विजन था कि शहर में पानी कम हो जाएगा और हमें पानी की ज़रूरत होगी, तो दरिया सवां के किनारे ARL की मैनेजमेंट ने 100 साल पहले इस जगह को एक्वायर किया, और ये तकरीबन पुराने कुएँ यहाँ मौजूद हैं, निशानियाँ हैं. और फिर DHA की कोलैबोरेशन ARL के साथ, उसकी वजह से ये बड़ा खूबसूरत नेचर रिजर्व यहाँ पे मौजूद है. तो मेरी दोनों मैनेजमेंट से रेगुलर बात होती रहती है, और यहाँ पे हम कुछ मेले भी मुनक़्क़द कर चुके हैं. ऑलिव फेस्टिवल भी किया हमने, किचन गार्डनिंग फेस्टिवल किया, और आने वाले दिनों में भी इस तरह के इवेंट्स होंगे. तो इंशाअल्लाह ताला ये जो जगह है ये प्योरली नेचर रिजर्व होगी. यहाँ पे आपको एक हमें कमेंट किया गया है कि यहाँ पे एक अच्छा खूबसूरत बोटेनिकल गार्डन और एक हर्बल गार्डन भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, जो कि देसी जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो रही हैं, देसी पौधे ख़त्म हो रहे हैं. तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कमिटमेंट हो इस जगह के साथ कि इस जगह को हम नेटिव प्लांट्स यहाँ पे, जैसे भी यहाँ पे 2 बोर्ड के पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे बोर्ड, पीपल, बेरी, फगवाड़ी, अंजीर, और ये ऐसे पौधे हों जहाँ पे कि जैसे ये सामने नज़र आ रहे हैं आपको, खूबसूरत आइवरी नज़र आ रही है आपको यहाँ पे खूबसूरत जानवर नज़र आ रहे हैं. तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हमें यहाँ पे इतने फलदार दरख्त हों, इतने नेटिव यहाँ पे दरख्त हों कि परिंदों के ऊपर घोंसले बने हों, और परिंदे उन बोर्ड के दरख्तों से, बेरी के दरख्तों से आज़ाद परिंदे यहाँ पे खा रहे हों उनसे, और ये एक खूबसूरत नेचर रिजर्व बने. तो मैं आप सब लोगों को, जो आप लोगों के पास अपने गाँव देहात में अगर आपके पास ज़मीनें हैं, अगर नहीं है तो ज़मीन ले के आप बात करें, अपने गांव जाया करें, अपने गांव से कनेक्ट करें, क्योंकि गांव से कनेक्शन ही आपको वो ऑर्गेनिक वैल्यू देता है. बच्चों को अपनी ज़मीन के साथ जोड़ें, और ख़ास तौर पे जो बच्चे भी आउटडोर एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, जो बच्चे नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे, जो फैमिलीज़ और जो नौजवान यंग जो लोग जितने भी मेंटल हेल्थ के इशूज़ आ रहे हैं, जो लोग भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में नेचर के साथ इन्वॉल्व हैं, वो कभी भी स्ट्रेस नहीं होंगे, वो कभी भी परेशान नहीं होंगे. तो अपने बच्चों को इस तरह के खूबसूरत पार्क में लेके आएँ. अभी जो आज इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग यहाँ पे आखिर तक रुके हैं, और जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे प्लांटेशन होनी है. तो जब आप वो पौधे अपने हाथ से लगाएं और उन पौधों की यादगार बनाएं, और जब भी मौका मिले इन पौधों को आके देखें, और आप ताकि जब जो बच्चे भी 10 साल के हैं, जब ये 50 साल के हों, तो देखेंगे जी ये हमने पौधा जो लगाया था ये 50 साल का हो गया. तो पौधे लगाना भी मिशन है और पौधों को बचाना भी मिशन है. और दरिया सवां आपको ये एक दे रहा है, ये एक निशानी दे रहा है कि हमें अपने घरों में से जो वेस्ट वाटर है उसको कोशिश करें कि अपने घरों में सेपरेट टैंक बनाएं, ताकि पोल्यूटेड पानी हम दरिया सवां ना फेंकें. क्योंकि जो पानी हम बाहर फेंकते हैं आपको शायद पता नहीं चलता, लेकिन अगले दिन ही वो पानी वापस हमारे घरों में आ जाता है, क्योंकि ये जो पानी पंप होता है ये पानी भी इसी दरिया के आसपास से पंप होता है. तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि हम अपना जो भी खाएं, जो भी हम उगा रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप चेक रखें वो कहाँ से आ रही हैं, और अपने आप को प्लांटेशन के साथ और इस तरह की एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ का जारी रखें. मैं शुक्रगुजार हूँ बगड़ी अमजद का, जिन्होंने ये पूरा इवेंट अरेंज किया, और नदीम साहब का, जिन्होंने हमें इस जगह पे एक खूबसूरत ये स्पेस दी है. और आपकी जो मैनेजमेंट है, जो विजनरी मैनेजमेंट है लोगों की, सदका जारिया क्या होता है, जैसे सभी एक मैम ने यहाँ कहा, सदका जारिया ये है कि एक पौधा आज से 100 साल पहले लगाया गया था, आज उस पौधा इतना ये फल फूल चुका है कि हम लोग यहाँ पे 100 लोग उसी छाँव में बैठे हैं. तो यही सदका जारिया है. आप भी अपने लिए ये सोचें कि हमने ऐसा कौन सा काम करना है जो 100 साल बाद हमारे लिए यादगार हो. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. भी अच्छी बातें हो चुकी हैं. सिर्फ आई एम हियर टू थैंक यू ऑल ऑफ यू. आपने टाइम निकाला एंड यू कम टू दिस प्लेस टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी. मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश, आई एम अ प्लांट लवर बेसिकली, और मेरी ख्वाहिश हमेशा से रही है, जैसे नदीम ने कहा, कि हम जब से पाकिस्तान बना ये प्लांटेशन ड्राइव चलती आ रही है. मानसून में भी होती है, स्प्रिंग फेस्टिवल में भी होगी, स्प्रिंग प्लांटेशन भी होगी, लेकिन हमारी सारी एफर्ट इनॉग्रेशन तक रह जाती है. वी स्पेंड लॉट ऑफ मनी एवरी ईयर ऑन दिस एक्टिविटी, लेकिन बस वो इनॉग्रेशन तक रह जाती है. उसके बाद हमारा जो परसेंटेज ऑफ ट्री कवर है वो हर साल से कम से कम होता जा रहा है. अभी हम 4.8% के ऊपर ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, विच इज़ वेरी लेस. ये मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी टीम की भी इंशाल्लाह कि हम इस प्लांटेशन ड्राइव को यहाँ से ले, हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं. सिर्फ ये आज फंक्शन हमने इसलिए अरेंज किया ताकि सबको एक लाइन पे लाएं और सबको ये चीज़ का रियलाइज़ कराएं कि DHA इज़ वेरी सीरियस. और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितनी भी
फ्लोरा और फाना को हम प्रिजर्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आर प्लांटेशन ऑफ दी शेडी एंड नेटिव ट्रीज। हम उसको बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जैसे मदर साहब ने कहा कि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे जितने भी एनवायरमेंटल इशूज़ हैं वो बिकॉज ऑफ द लेस ट्री कवर इन पाकिस्तान है। तो हम एटलीस्ट अपनी एफर्ट करें, हर इंसान अपना एक पौधा लगाए, अपने घर में लगाए, अपने घर के बाहर लगाए और उसको बड़ा करें। हम में से सारे लोग बाहर गए हुए हैं। कभी आपने सोचा जब बाहर से वापस आ रहे थे तो पाकिस्तान कितना अच्छा लगता है? पाकिस्तान आपको एक साया देता है, एक प्रोटेक्शन देता है। यही काम एक बड़ा दरख्त हमारे लिए कर सकता है। तो हमें प्रोटेक्शन का एहसास दिलाएगा, हमें आज़ादी का एहसास दिलाएगा, हमें वो मोहब्बत इशू करेगा, मोहब्बत देगा जो हम पाकिस्तान से लेते हैं। तो इस अगस्त के महीने को हम अपनी आज़ादी के वाले महीने को इस प्लांटेशन की नज़र करते हैं। इसके लिए हम वक्त करते हैं कि जिस तरीके से हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है उसी तरीके से हमें बड़े दरख्तों की भी ज़रूरत है। फ्लोरा और फाना आप अपने आसपास देख लें, आपको कोई बड़ा परिंदा नज़र नहीं आता क्योंकि हमने दरख्त ही छोटे लगाने शुरू कर दिए, बड़े दरख्त नहीं है। आपको कोई गिद्ध नज़र नहीं आएगा, कोई आपको बड़ी चीलें नज़र नहीं आएंगी, आपको बड़े परिंदे नज़र नहीं आएंगे। आप इर्द गिर्द देख लें, आपको सबस तोते नज़र नहीं आता, जो वाइल्ड है वो भी नज़र नहीं, क्योंकि हमने वो दरख्त लगाया नहीं उसके लिए। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि तकरीबन 50,000 प्लस माइनस हम दरख्त लगाएंगे। मेजॉरिटी उसमें से ऐसी होगी जो हमारे परिंदों को अट्रैक्ट करेगी। हम फ्रूट ट्रीज के बहुत सारे जगहों के ऊपर तमाम फेजेस ऑफ DHA में हम ऐसे कॉर्नर्स और इस तरीके से प्लॉट्स और सेगमेंट्स में लगा रहे हैं जिसके ऊपर हमारी तोते, चिड़ियाँ और वो जिनको बच्चे देख खुश होते हैं, जिनको हम बचपन में देखते रहे, वो हम चाहते हैं कि दोबारा वापस आए हमारे पास। तितलियाँ आपको नज़र नहीं आती क्योंकि हमने वो वाले फूल लगाने छोड़ दिए जिनकी खुशबू होती थी। अब हम उन फूलों पे चले गए जो हमें नज़र तो अच्छे आते हैं लेकिन खुशबू नहीं है। हम तितलियों के लिए भी मेहनत करेंगे। सवा के जो बेड्स और उसकी स्लोप्स, लिंग रिवर की स्लोप्स और उसके बेड्स और उसके आसपास के इलाकों को हम फ्लोरा और फाना जो नेटिव है इस इलाके का, जो आज से 25-30 साल पहले मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि सवा कितना खूबसूरत, साफ सुथरा और कितने इसके ऊपर बर्ड्स होते थे क्योंकि दरख्त बहुत सारे थे, उसको दोबारा लेके आए। साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, लेकिन वो विल इंशाल्लाह रीच टू दैट पॉइंट। दिस इज आवर कमिटमेंट। एक और बड़ी अच्छी चीज़, क्योंकि दरख्त बड़ा होने में बड़ा टाइम लगता है लेकिन काटने में हमें आधे दिन में हम मेरे ख्याल में 15-20 दरख्त बड़े काट देते हैं। और रिसेंटली हमारी एक ड्राइव ये चली है, एक हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग उसकी एक्सपेंशन होनी थी तो उसमें काफ़ी सारे दरख्त तकरीबन 28 के करीब उसकी जद में आ रहे थे। मदर साहब ने एक एफर्ट की, उनको कन्विंस किया और हमें भी कन्विंस किया कि इनको प्रिजर्व करते हैं। तो कल हमने 12 बड़े दरख्त जो तकरीबन 18 से 20 फीट बड़े थे उनको उधर से रीलोकेट करके हॉस्पिटल से DHA फेज 3 में उनको रीप्लांट कर दिया गया। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा उसको और खूबसूरत करेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, आप लोगों के लिए एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे जहाँ पे यू कैन ऑलवेज विजिट एंड एंजॉय दोस प्लांट्स। ये कल्टेक्स का जो पेट्रोल पंप है उसके सामने एक प्लॉट में 12 लगा दिए। कल इंशाल्लाह इसमें 5 से 6 और आ जाएंगे जिसमें देयर इज अ 80-year-old banyan ट्री, ब्यूटीफुली मैजेस्टिकली ब्यूटीफुल। आप सबको देखकर खुशी होगी कि वो पौधा वाजब लगेगा इंशाल्लाह फेज 3 DHA में। और इस एफर्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे। वी विल एयर मार्क फ्यू सेगमेंट्स इन DHA जहाँ से दरख्त बड़े, बिकॉज यार एक्सपेंशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो बहुत सारे दरख्त निकलेंगे तो उनको हम उस कॉर्नर में प्लांट करना शुरू कर देंगे। सर, जस्ट अ वर्ड फॉर दी praising remarks and praising words for everyone who has helped us to reach to this point. EPA ने बहुत हमें हेल्प किया, हमारे AIC ऑर्गेनाइजेशन है, ARL ने बहुत सपोर्ट किया, मदर साहब ने किया, जाहिद साहब है, बाकी रोटरी क्लब वाले हमारे दोस्त हैं वो आए हुए हमारे पास। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर ऑल योर एफर्ट एंड सपोर्ट टू अस। इंशाल्लाह जब चंद लोग हाथ में ला लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मिशन अकम्प्लिश हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम उसमें फेल हों, हम इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे और हम इस ड्राइव को लेकर चलेंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। हर दफ़ा आपको काउंट करके बताया करेंगे कि मॉनसून में जो की थी प्लांटेशन उसमें कितना फ़ायदा हुआ, आगे इंशाल्लाह स्प्रिंग आएगी उसमें करेंगे, नेक्स्ट मॉनसून में करेंगे और 2 से 3 साल के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। गुड न्यूज़ फॉर दी रेजिडेंट्स, और जो भी बंदा हमारे पास आएगा, हमने काफ़ी सारे पौधे इकट्ठे कर लिए हैं। हम आपको विच एवर टाइप ऑफ फ्रूट ट्री या नेटिव ट्री आपको चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। कुछ पौधे हमने आज रखे हैं, दीज आर जस्ट सैंपल, और एक ऐसे क्योंकि सारों को हम नहीं ला सकते थे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए या आपके किसी और दोस्त को, फैमिली मेंबर को, DHA रेजिडेंट और नॉन DHA रेजिडेंट, इट होल्ड्स गुड फॉर एवरीवन। आप वो पौधे हमसे ले जाएं, अपने घरों में लगाएं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और चाहिए होंगे हम आपको वो भी प्रोवाइड करके देंगे। इट्स आवर कमिटमेंट। इंशाल्लाह इस साल से DHA नर्सरीज अपना जो सीजनल फ्लावर्स है वो हम अपने लगाने शुरू कर रहे हैं विद द कमिटमेंट कि आप सबको हमारे जो रेट्स होंगे इंशाल्लाह, एक तो क्वालिटी अच्छी होगी, हाइब्रिड अच्छी नस्ल के बीज लगा रहे हैं, और ऑन अ मच चीपर रेट एज कम्पेयर टू द मार्केट हम आपको दे सकेंगे इंशाल्लाह। एंड इफ पॉसिबल वी मे प्रोवाइड फ्री ऑल्सो
अगर ना हो सका तो एटलीस्ट रेट बहुत चीप होगा. सो यू ऑल आर वेलकम and encourage to share this point with your friends also and other residents. जिसको जितने फ्लावर्स हैं होंगे इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे. आगे मैरीगोल्ड का सीजन आ रहा है. वी आर प्लांटिंग प्लेंटी ऑफ दोज. इंशाल्लाह आपको विद इन अगस्त 3rd वीक ऑफ अगस्त के बाद से हम आपको मैरीगोल्ड प्रोवाइड कर सकेंगे इंशाल्लाह. उसी जो पनीरी है. अगेन सो वेरी काइंड ऑफ यू. जस्ट अ रिक्वेस्ट, ये जो हमने आज एफर्ट किया है इसको, और जो हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले बयान किया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, प्लांटेशन, सीजनल, नेटिव, शेडी ट्रीज, काइंडली खुद भी इस पर गौर करें, अपने दोस्तों को बताएं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय मीडिया फ्रेंड्स, उनका बड़ा रोल है. जितना आप लोगों को कन्विंस कर सकेंगे टू डाइव इनटू दिस ड्राइव, उतना ही पाकिस्तान का, इस कौम का फ़ायदा होगा. वी नीड लॉट ऑफ फ्री कवर इन पाकिस्तान. सो वेरी काइंड ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सो ऑनर्ड. तो ये सदका जारिया ये एक मुसलसल अमल है. ये नहीं है कि ये दरख्त अगर 50 साल या 100 साल रहेगा और ये अगर कि अपने उम्र के हिसाब से ख़त्म हो गया तो सदका जारिया ख़त्म हो गया. सदका जारिया अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये एक मुसलसल अमल है, इसलिए कि ये आपके नामा अमाल में जब तक ज़िंदगी कायम है, आखिरत की भी, ये चलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह. तो माशाअल्लाह बड़ी अच्छी एफर्ट. ये ख़ासकर अंजीर के, ये जैतून के, ये जैतून का बाग देख के बहुत खुशी हुई है. बहुत फल उसने लिया है. तो आपको पता है कि जैतून जो है वो एक ऐसा मुकद्दस पौधा है कि जिसके बारे में अल्लाह ने कहा वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, यानी अल्लाह ने कसम खाई है इस दरख्त की. तो इस लिहाज से ये मैं समझता हूँ बड़ी परफॉर्मेंस है DHA की. अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत और तौफीक दे कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहें. और मैं पाकिस्तान के शहरियों को भी दावत दूंगा कि वो भरपूर तरीके से इसमें शमूलियत अख्तियार करें. जी अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ इंजीनियर राजा वहीद अहमद. आई प्लांटेड दीज 3 ट्रीज और इंशाल्लाह मैं इन्हें आके देखता रहूँगा कि ये है. इसमें ख़ास तौर पर ये जो एक फ्रूट ट्री है, मेरी ये गुजारिश होगी कि जितने भी लोग हैं, हम जब फल खाएं तो उसकी बीज या जो गुटक होती है उसे वैसे ना फेंकें, बल्कि उससे मिट्टी में भगो के किसी जगह पे जाके फेंकें ताकि वो एक दरख्त बन जाए. तो यही है मेरा पैगाम. ओके, अस्सलाम वालेकुम. हम सब इनर व्हील की तरफ से आए हैं हमारा यहाँ पर प्लांट्स लगाने के लिए, और हम चाहते हैं कि जो हमारे लगाए प्लांट्स हैं वो आगे भी बच्चे, उस नस्ल, अगली नस्ल भी उससे फ़ायदा उठाए. और ये बहुत अच्छा जेस्चर इन्होंने DHA वालों ने किया है एंड इट्स वेरी गुड कि ये इतना अच्छी सेरेमनी इन्होंने सेलिब्रेट की है. और अल्लाह करे कि ये जो प्लांट्स हम लगा रहे हैं ये आगे आने वाली नस्लों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुशामदीद. आज हमारा एक प्लांटेशन का आज आगाज़ हो रहा है, मानसून प्लांटेशन का. इस वक्त हम नेचर रिजर्व पार्क DHA 4 में हैं. ये बड़ी खूबसूरत फैसिलिटी है, ARL नेचर रिजर्व पार्क, जो कि दरिया सवां की बिल्कुल संगम पे हम यहाँ पे मौजूद हैं. एक तरफ बैरिया टाउन है, दूसरी तरफ DHA है. और ये बड़ा अच्छा आज का दिन है कि जी हम इसको एक खूबसूरत दिन के साथ, खूबसूरत शाम के साथ प्लांटेशन का आगाज़ कर रहे हैं. मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो पूरे पिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग पे या पुठार में या जहाँ पे भी आवाज़ सुनी जा रही है, दरख्त लगाएं, अपने माहौल को बचाएं, क्योंकि एक दरख्त बचाना या एक दरख्त लगाना एक ज़िंदगी देने और ज़िंदगी बचाने के बराबर है. तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में ज़रूर एक दरख्त लगाएं, और मुमकिन हो सके तो किसी एक दरख्त को बचाने का अहद करें और सारी ज़िंदगी उसको परवान चढ़ता हुआ देखें. इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे दरख्त हैं अपने, चाहे अब खैर दूसरी आबादियाँ हैं जहाँ पर कि इस वक्त दरख्त इस वक्त मुश्किल में है हमारी, क्योंकि दरख्तों के साथ एक वाइल्ड लाइफ जुड़ी होती है. दरख्तों के साथ नेचर है, इस पर परिंदे घर बनाते हैं. अगर आप, छोटा सा पैगाम ये है कि अगर आप एक चंद परिंदों को घर में पाल लें तो उनका दाना देना मुश्किल हो जाता है, जबकि कुदरत जो है वो कई हज़ारों लाखों परिंदों को, कई हज़ारों लाखों जानदारों को, वाइल्ड लाइफ को पालती है. तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जितना मुमकिन हो सके अपने गांव देहात में अपनी ज़मीनों पे भी दरख्त लगाएं, चाहे वो आप प्रॉफिट के लिए लगाएं, शजरकारी करें, चाहे कमर्शियल फार्मिंग करें या इसको ऑर्नामेंटल फार्मिंग करें. अपना ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सरफराज कियानी है और मैं DHA का रेजिडेंट हूँ. तो आज यहाँ पे मैं भी अपने हिस्से का चिराग जलाने के लिए ट्री प्लांटेशन के लिए हाज़िर हुआ हूँ. यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है DHA ने, और मेरी ख्वाहिश है कि जी तमाम लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हों या अपने बच्चों को परवान देखना चाहते हों तो इन्वायरमेंट से मोहब्बत करें और अपने हिस्से का दरख्त लगाएं. थैंक यू. जी, मेरा नाम अजीज़ अहमद है और मैं ब्रेस बहरिया टाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज वन ऑफ द डायरेक्टर्स. हम लोग DHA के साथ मिलके इस बहुत बेहतरीन एफर्ट में शरीक हैं. वी आर वर्किंग एज पार्टनर्स विद DHA इन दिस, एंड होपफुली हम इस ट्री प्लांटेशन ड्राइव में न सिर्फ DHA के स्वान रिवर की तरफ को हम वो करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, मगर बहरिया की तरफ के पूरा स्वान रिवर का पूरा जो है और अंदर बहरिया के अंदर भी
ट्री प्लांटेशन ड्राइव करेंगे और ये चलता रहेगा फॉर सम टाइम। और ये सिर्फ एक प्लांट को प्लांट करने से नहीं मामला होगा, क्योंकि इनको सालों साल लगते हैं बढ़ने में। तो हर से रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो दे शुड अडॉप्ट अ प्लांट और अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, और वो खुद भी उसके ऊपर ख्याल रखें। सीजनल उसकी एक्टिविटी में उसके साथ देखेंगे कैसे करना है, और उस बात को ऐसे करें कि दे डोंट डाई ऑफ but remain and nurture the earth and give sustenance to our environment. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त को DHA के तहत ये प्लांटेशन का एहतमाम किया गया यहाँ DHA 4 के ARL पार्क में। बहुत अच्छा कदम है और इसको मूनसून प्लांटेशन का नाम दिया गया है, जबकि मेरा ख्याल है कि अगर इसको 14 अगस्त से रिलेट कर देते तो जहाँ हम झंडियाँ लगाकर उसकी बेहुरमती करते हैं, ये पौधे लगाकर मुल्क को हरा भरा करके एक अच्छी बुनियाद रखते। बहरहाल ये बहुत अच्छा काबिल तहसीन और काबिल सताइश कदम है और इसको जारी रहना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया फयाज है और हम यहाँ पे ट्री प्लांटेशन के लिए आए हैं। DHA वालों ने ये बहुत अच्छा एक लिया है, जिसकी वजह से लोगों को मौका मिले अच्छी जगह पे आने का और प्लांटेशन करने का, और सबको मुल्क में हर एक को चाहिए कि वो आए और अपना हिस्सा डालें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं कंदीर हूँ और मैं DHA में आज आई हूँ प्लांटेशन के लिए, और बहुत अच्छी बात है कि कोई इसके लिए काम करे, बिकॉज इट्स वेरी रेयर। आजकल सब नेचर को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो इसके लिए वर्क करते हैं, तो इट्स वेरी गुड और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्लडिंग वगैरह की वजह से बहुत हमारे पास नेचर नहीं है, तो इसलिए नेचर हमारा भी फिर हमारा नुकसान हो रही है। तो हम लोग के साथ ग्रो करेंगे चीज़ें तो हमारे लिए फ़ायदा होगा और हमारी आगे जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा ये सब कुछ। और अल्लाह जो ये है जो काम कर रहे हैं ये लोग उनके काम में बरकत डाले और इनको और दे के ये लोग और इस तरह कर सकें। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है DHA की तरफ से, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सस्टेनेबिलिटी इसके हवाले से ये पाकिस्तान में बहुत रिक्वायर्ड है, सिंस हमारा जो टोटल कंट्री का जो फॉरेस्ट कवर है वो अराउंड 4.8% ऑफ लैंड है, जिसको अगर हम अपनी आबादी की रेशो से देखें तो बहुत कम है। पोल्यूशन इज़ एक इमर्जिंग ग्लोबल प्रॉब्लम। उसके अलावा अभी जो ये फ्लैश फ्लडिंग है, बारिशों की वजह से जो ये लैंड स्लाइडिंग है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए प्लांटेशन इज़ अ की इंग्रेडिएंट। तो माशाल्लाह आज की जैसे ये एक हमारे प्रेयर पे नज़र आ रहा है, दिस वाज एन इनिशिएटिव बाय द DHA इन कोलैबोरेशन विद ARL। ये ऑलिव गार्डन लगाया गया था, एक पायलट प्रोजेक्ट था, अब माशाल्लाह ये पूरा फुली ग्रोन एक ऑर्चर्ड बन गया। इसी तरह आज की ड्राइव के बाद भी आई एम होपफुल कि नेक्स्ट ईयर जब हम इधर खड़े होकर बात कर रहे होंगे तो जिस जगह पे प्लांटेशन ड्राइव हुई थी ये इंशाल्लाह एक मिनी फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक वैल्यू एडेड फीचर है फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ DHA and phase 1 and phase 4. So inshallah I'm very hopeful that this will bring a very positive change for the community. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। ये जो ऑलिव हमने प्लांटेशन की है ये बेसिकली पाकिस्तान जो है वन ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टर है ना ऑलिव का, तो इसकी इंपोर्ट के जो मिटिगेट करने के लिए हमने ये ऑलिव लगाया, और इसकी जो प्रोडक्शन है हम हिली एरिया जितने भी हमारे खासतौर पर जो पोर्ट का एरिया है ये इसकी कल्टीवेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट एरिया। तो यहाँ पे हम कल्टीवेट भी कर सकते हैं और अपनी जो प्रोडक्शन है उसको इनहांस करते हुए जो इंपोर्ट है उसका फैक्टर हम कम कर सकते हैं। इसके लिए बरानी जो इंस्टीट्यूट है चकवाल में, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, जिन्होंने स्टार्ट के अंदर इसकी जो ऑयल प्रोसेशन है उसका यूनिट भी इंट्रोड्यूस करवाया है, और इस वक्त जो प्राइवेट फार्मर्स हैं वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। काफ़ी बड़े फार्म इसके तैयार हो चुके हैं, जो कि एक बहुत खुशाइन चीज़ है, और पाकिस्तान के जो इम्पोर्ट का जो लोड है ऑलिव का वो इससे कम हो रहा है। और इसकी जो काफ़ी सारी वैरायटीज़ है जो पाकिस्तान में कल्टीवेट हो रही हैं, कुछ स्पेन से बेसिकली जो इसका ओरिजिन था स्पेन था, और ये वैरायटीज़ भी वहीं से इनिशियली इंपोर्ट हुई और यहाँ पे एक्लेमेटाइज भी है। और इसकी जो वर्जन ऑयल है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, उसको हम फर्दर भी प्रोसेस करने के बाद अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, जिससे हमारी जो ये सेहत जो है इसके ऊपर, इसका ऑलिव के जो ऑयल है इसकी सेहत के हमारे ऊपर इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कह लेंगे इसका जो है रिज़ल्ट है इसके ऑयल का। और इसका कुरान पाक में भी जिक्र मिलता है ऑलिव का कि इसके अंदर शिफा है और ये जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त भी है। तो ओवरऑल जो है इस खित्ते के लोगों को चाहिए कि इसकी प्रोडक्शन में अपना हिस्सा डालें और इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करें, और
इवन कि इसकी जो लीफ है वो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी बार को भी यूज़ कर सकते हैं, इसके जो फ्रूट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके इवन के जो लीव्स हैं उससे जो कावा है बड़ा ज़बरदस्त बनता है, इसकी जो टी भी है उस भी हम बना सकते हैं। तो इसको मल्टीपर्पज़ इसका फ़ायदा है और ये जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है। इसको जितना ज़्यादा हम प्रमोट करें उतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए भी अच्छा और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। We love trees. Clapping.